क्या है, ये क्लियर है? ठीक है, ओके, ठीक है बेटा। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ A moles of A plus B moles of B, they are giving rise to some product formation। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ that directly depends upon the concentration of reactants A and B। But कितनी dependency है, that is shown by the exponent। Let us say this exponent is alpha and this is beta। हालांकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन विच दिस इज A moles of A reacts with B mole of B, but ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੇਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਰੇਟ A ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਮ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਲਫਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚ ਮੇ অর ਮੇ ਨਾਟ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ B ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਮ ਤੇ ਰੇਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, that comes out to be beta। beta may or may not be equal to B। ठीक है, सो A अल्फा और बीटा ਅਸੀਂ एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं। ऑडियो नहीं आ रही है बेटा, बाकी ਨੂੰ ਹੁਣ भी नहीं आ रही ऑडियो। एक बच्चे ने शेयर किया है कि ऑडियो क्लियर नहीं है। ऑडियो क्लियर है या नहीं? क्लियर है, ओके, ठीक है बेटा। सो अगर किसी बच्चे ਨੂੰ बेटा नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। सो इट मीनस ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ कांस्टेंट लगा देंगे, दैट कांस्टेंट इज स्मॉल k, so a raised to power alpha, b raised to power beta। so here this k which is proportionality constant, so that is known as velocity constant, or this is also known as rate constant। ठीक है, और जिधर भी ਅਸੀਂ ਕੋਈ कांस्टेंट लगाने है तो ਅਸੀਂ इसको किस तरह डिफाइन करने हैं, बाकी सारे टर्म्स ਅਸੀਂ 1 पुट कर देने हैं। सो लेट अस से concentration of A का concentration, this is equal to concentration of B, this is equal to 1। so concentration of A and concentration of B both are equal to 1, so in that is the left hand side will be equal to K only। so in that case rate will be equal to K। so let us say this is equation number 1। so if we put A and B equal to 1, the rate comes out to be equal to K। तो ਹੁਣ ਅਸੀਂ K ਨੂੰ define ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, velocity constant ਜਾਂ rate constant define ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। so this rate constant or velocity constant is equal to the rate of the reaction when concentrations of each of the reactants they are equal to unity। so ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ reactant ਦੀ concentration unity ਹੋਏਗੀ, ਉਸ time ਜਿਹੜਾ rate ਆਏਗਾ that is equal to rate constant। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, under specific conditions ਜਿਹੜਾ ਇਹ rate constant ਹੈ ਉਹ rate ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ velocity constant ਨੂੰ specific reaction rate भी कहते हैं, specific reaction rate, क्योंकि specific condition ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ reaction ਦੇ rate ਦੇ equal ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। so that is why it is known as specific reaction rate। ਹੁਣ ਇੱਕ इक्वेशन में ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅਗਰ law of mass action ਦੇ through ਲਿਖੀਏ, according to law of mass action rate किसी भी reaction ਦਾ, क्योंकि theoretical equation है, this is theoretical, और जो ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਰਹੇ हैं इसमें ਅਸੀਂ rate law expression कहने हैं, this is known as rate law expression, और यह experimental है। एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर रहे हैं, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो रेट है किसी भी रिएक्शन का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of A and concentration of B with concentration term of each reactant raised to the power numbers which are given in the balanced chemical equation। so अगर से देखिए
इस एक्सप्रेशन ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ 1 ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਲਾ ਆਫ ਮਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰਸ ਹੈ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟਾਈਕੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਰੇਟ ਲਾਅ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ फाइंड आउट कर रहे हैं कि रेट कितनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म ਤੇ डिपेंड करता है ठीक है और ये वैल्यूज ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ਦੇ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ਦੇ इक्वल भी हो सकती हैं और इक्वल नहीं भी हो सकती हैं ठीक हो गया सो इथों ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਰਡਰ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ व्हाट इज ਆਰਡਰ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है दैट कम्स फ्रॉम रेट लॉ एक्सप्रेशन ओनली लॉ ऑफ मास एक्शन तो नहीं फाइंड आउट करते सो इसमें ਅਸੀਂ n ਦੇ ਨਾਲ डिनोट करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन for this particular reaction it is equal to alpha plus beta so what is order of reaction it means we can define order of reaction it is the sum of powers sum of the exponents to which concentration terms are raised in the rate law expression so rate law expression ਦੇ ਵਿੱਚ concentration terms ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਸੋ ਆਰਡਰ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੇਟ ਲਾਅ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਲਾ ਆਫ ਮਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਲਾ ਆਫ ਮਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਕਨਸੈਪਟ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਲਾਅ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ फाइंड आउट ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਕੈਨ ਬੀ ਜ਼ੀਰੋ अगर जीरो है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया इट कैन बी वन फर्स्ट ऑर्डर 2 सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एंड सो ऑन so it can be whole number integer भी हो सकता है और it can be fractional number also so fractional भी हो सकता है fractional example अगर से देखिए so very interesting example अगर से एसिटाल्डिहाइड ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਦੇ हैं ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है और रेट जो है इस रिएक्शन का दैट इज सम वेलोसिटी कांस्टेंट with concentration term of reactant raised to power 1.5 so इसका मतलब इस रिएक्शन का देखने में सानू की लग रहा है इक्वेशन तो कि it should be one first order reaction but order of reaction is equal to 1.5 so it can be fractional value it can be zero or it can be any integer value so उसके बाद ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ n ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ मतलब बेसिकली ये चीज आ रही है n इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आ जाती हैं और k इज कांस्टेंट रेट जो है दैट इज इक्वल टू dx अपॉन dt dx इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन चाहे रिएक्टेंट दी या प्रोडक्ट दी कोई भी है सो इतने कॉन्सेंट्रेशन है ये और ये नीचे अपने डिनोमिनेटर से टाइम लिखा हुआ है क्योंकि असं यूनिट फाइंड आउट कर लिए तो असं इसलिए स्टिक ना लिखते हैं तो k के यूनिट्स की होंगे k के यूनिट्स होंगे रेट के यूनिट्स डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन पावर n इज द यूनिट्स और रेट के यूनिट्स की है रेट इससे बराबर होता है ना तो इसके यूनिट्स हो गए कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट्स ऑब्लिक टाइम के यूनिट्स और इतने कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट्स पावर n सो k के यूनिट्स की हो जाएंगे कॉन्सेंट्रेशन मैं होर क्लियर लिख लेनी कॉन्सेंट्रेशन n इंटू ये टाइम नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर दे विच ठीक है सो इतने हुण कॉन्सेंट्रेशन कितनी पावर होगी सो ये अगर असं ऊपर लेके जाने हैं तो यह माइनस n हो जाएगी बट ऊपर एक पावर ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन सी सो दिस कैन बी जस्ट ए मिनट बेटा
सॉरी बेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट काम आ गया सी जिस करके मैनू थोड़ी देर तुहानू वेट करवानी पई। हाँ जी सो असी गल कर रहे सीगे यूनिट्स की। सो अगर असी यूनिट्स के दे देखिए तो उस यूनिट्स क्या आएंगे कॉन्सेंट्रेशन इतने 1 है पावर इतने n है तो ये 1 माइनस n हो जाएगा और टाइम के जो यूनिट्स होंगे वो -1 हो जाएंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन जी है वो बेटा आवाज क्लियर आ रही है क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है इतने। आवाज क्लियर है सारे में? 1847 जसप्रीत 1847 बेटे मैं बहुत बारी कह चुकी हैं इससे बाद मैं क्या नहीं करना और मैं सीधा तुहानू फिर क्लास के विचों बाहर ही निकालूंगी जेडे भी बच्चे ने अपने आप को बिना किसी रीजन दे अनम्यूट किया। हुण किसने किया है बेटा? सिर्फ मैं तुहाडी क्लास में देखने की प्रॉब्लम आ रही है किसी क्लास प्रॉब्लम नहीं आती है। पूरा एक सेमेस्टर तुसी क्लासेस लगा चुके हो बेटा हजे तक भी अगर नहीं समझ आ रही तो ये बहुत गलत गल है। हाँ जी सो कॉन्सेंट्रेशन के दे यूनिट्स जो होंगे कॉन्सेंट्रेशन दे यूनिट्स 1 माइनस n और टाइम दे यूनिट द इनवर्स और ये कॉन्सेंट्रेशन है मैं स्क्वायर ब्रैकेट लिख रही हैं ऑल दीज आर मोलर कॉन्सेंट्रेशंस। मोलर कॉन्सेंट्रेशन मींस मोल पर लीटर ठीक है और 1 माइनस n टाइम दे यूनिट्स सेकंड भी हो सकते तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा अगर मिनट है तो मिनट इनवर्स और अगर आवर्स ਦੇ ਵਿੱਚ टाइम ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ आवर्स इनवर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब एक ही हो गया मोल दे यूनिट्स अगर लेट अस से मेरे को अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो की होएगा। सो अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है n इज इक्वल टू 2 सो दिस इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन तो इस केस में k दे यूनिट्स की होंगे सो k दे यूनिट्स हो गए मोल पर लीटर 1 माइनस n इज इक्वल टू 2 टाइम दे लेटर से सेकंड है सेकंड इनवर्स सो ये हो जाएगा मोल पर लीटर और इतने पावर की आ जाएगी -1 सेकंड इनवर्स। सो इट मींस ए यूनिट्स तो ऐसे रिवर्स कर देना इनवर्स कर देना है तो इट इज लीटर है ना क्योंकि इनवर्स का इनवर्स पॉजिटिव हो जाएगा लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। सो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विच ए वाले यूनिट्स आ जाएंगे और अगर ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ ਉਹ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਵਟ ਆਰ ਦ ਯੂਨਿਟਸ ਸੋ ਕੇ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स सो सेकेंड ऑर्डर लिए 2 आ जाएगा सो दिस इज एटमॉस्फेयर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सो इस तरह ये यूनिट साडे कोल आ जाएंगे डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन दे। सो ये तो हो गया बेसिक गल्लां हुण असीं स्टार्ट करांगे डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस जिस तरह की साडे कोल है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो लेट अस स्टार्ट विद जीरो ऑर्डर रिएक्शन। So zero order reaction means, as the name is giving the information, the reaction in which rate doesn't depend on concentration of reactant. Reactant the concentration पे rate depend नहीं करता. So reaction कोई भी है A giving rise to product है ना 2A giving rise to product, let us say A plus B plus C giving rise to product, any type of reaction if experiment it has been found that rate is
independent of concentration of all the reactants, A raised power 0, B raised power 0, C raised power 0. अगर एक कोई reactant है तो A raised power 0, अगर तीनों है तो हर एक की term जैसे power 0 कर देंगे. So that type of reaction is known as zero order reaction. So no dependence upon the concentration of reactant in case of zero order reaction. So such type of reactions ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ reactions ਨੇ, they are photochemical reactions. Photochemical reactions ज़्यादातर zero order reaction ਹੁੰਦੇ ਨੇ. Photochemical means those chemical reactions which occur in the presence of photon or light. ठीक है, तो ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ photochemical reactions ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. तो इस reaction ਦਾ ਜਿਹੜਾ zero order reaction ਹੈ उसਦਾ ਅਸੀਂ expression किस तरह find out ਕਰਾਂਗੇ, rate expression किस तरह लिखांगे. तो उस केस ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ जो rate है, देखो rate ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾहे dx upon dt लिखो. dx upon dt means in small time interval dt there is small concentration change, that is dx. That concentration change may be in the concentration of reactant or product. चाहे ਅਸੀਂ reactant ਦੇ point of view ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਾहे product ਦੇ point of view ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, concentration ਵਿੱਚ change ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, dx ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. So अगर ये zero order है, this is equal to k a raised to power 0. Suppose मैं simple reaction ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, a giving rise to product. तो इस reaction ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ rate ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. So anything raised to power 0 is 1. So 1 into k is k. It means dx is equal to, इसमें अपन इस साइड से लिखेंगे k dt. ठीक है, और अगर से इसमें इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेटिंग अगर अपन इंटीग्रेट करांगे था dx की इंटीग्रेशन कर देंगे, k is constant, उसमें ਅਸੀਂ इंटीग्रेशन तो बाहर ले लेंगे. मैं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਪਾर्ट ਆ ਜਾਏਗਾ. तो दिस इज इक्वल टू x इंटीग्रेशन ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ स्मॉल इंटरवल सारे ਨੂੰ ਅਸੀਂ अगर ऐड कर देंगे ਸਾਡੇ ਕੋਲ x आ जाएगा. इसी तरह k, इस तरह टाइम इंटरवल स्मॉल है और छोटे छोटे इंटरवल्स ਨੂੰ अगर ਅਸੀਂ ऐड कर देंगे तो t आ जाएगा. और ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੁక్స్ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ c ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ i ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ. सो दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो अगर इससे ਅਸੀਂ वैल्यू फाइंड आउट करनी है, c दी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेट अस से टाइम t इज इक्वल टू 0. सो व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0 मींस हजे रिएक्शन स्टार्ट नहीं होया. तो अगर रिएक्शन बेटा एक मिनट जरा, नहीं बेटी का फोन आ रहा है, देखो मैं संभाल कर वेरिफिकेशन करने ना सी में चेंज करो. So when t is equal to 0 reaction start नहीं होया, तो उस टाइम there is no reactant or product change, concentration t, x is also equal to बेटा फिर कोई बच्चा अनम्यूट करके रोल नंबर 1873, रोल नंबर 1873 सुमन. बेटा कोई स्टूडेंट करो गल करो. तो जो टाइम t इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि रिएक्शन नहीं स्टार्ट होया, तो प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कोई चेंज नहीं आएगा. x इज इक्वल टू 0. सो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1. x इज इक्वल टू 0, टाइम t इज इक्वल टू 0, इट मींस दिस पार्ट इज 0. सो c इज ऑटोमेटिकली कम्स आउट टू बी 0. सो अगर c 0 आ रहा है तो इस इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देंगे एंड x इज इक्वल टू kt. सो साडे कोल ए वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा. सो दो तरीके हैं ए एक्सप्रेशन लिखने के लिए, चाहे ਅਸੀਂ जिन्ने भी रिएक्शंस करांगे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, एक तो इसमें dx अपॉन dt करके लिखांगे, या फिर दूसरा मेथड की है ਅਸੀਂ रेट ਨੂੰ माइनस da अपॉन dt भी लिख सकते हैं, है ना. ये मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, रेट ਨੂੰ ਅਸੀਂ माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट ਦਾ ਗੱਲ कर रहे हैं ਤਾਂ da अपॉन dt माइनस क्यों लिखा ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, क्योंकि ਜਿਹੜਾ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट दी है विद टाइम वो नेगेटिव आती है,
पर रेट कदे भी नेगेटिव नहीं होता तो असं अगे नेगेटिव साइन लगा के इसको पॉजिटिव कर देंगे सो दिस इक्वल टू के और इतने असं लिख देंगे के ए रेज़ टू पावर 0 ठीक है सो इट मीन्स माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी बिल्कुल उसी तरीके नाल एंड अगर असं इसको इंटीग्रेट करांगे सो फर्क ये है इतने असं डी एक्स लिख रहे हैं इतने असं माइनस डी ए लिख रहे हैं सो दिस इज माइनस ए और या फिर अगर नेगेटिव साइन इस साइड चला लेने सो ए कॉन्सेंट्रेशन है तो मैं ब्रैकेट लिख रही है सो दिस इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी और उसी तरह व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू 0 जो टाइम t 0 है रिएक्शन स्टार्ट नहीं होया इसका मतलब रिएक्टेंट बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं होया तो उदो ए दी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होएगी जो ਅਸੀਂ स्टार्टिंग ਵਿੱਚ ऐड ਕੀਤੀ है क्योंकि रिएक्टेंट कंज्यूम नहीं होया सो स्टार्टिंग ਵਿੱਚ लेट अस से ਅਸੀਂ A नोट कॉन्सेंट्रेशन ऐड ਕੀਤੀ है सो एट दैट टाइम A will be equal to A नोट सो सब्स्टिट्यूट these values in equation number 1 सो A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ A नोट लिख ਦਾਂਗੇ t is equal to 0 तो 0 हो गया तो C की वैल्यू जी है वो A नोट आ जाएगी सो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन नंबर 1 A is equal to minus KT plus A नोट ठीक है और इथों असी KT की वैल्यू फाइंड आउट कर लांगे सो माइनस KT is equal to इसनों सिद्धर लियावांगे इसनों अगर आप इस साइड से लेके आने हैं तो A नोट A माइनस A नोट is equal to minus KT या फिर ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਵਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ A नोट minus A is equal to KT ठीक है इधर से नेगेटिव साइन बाहर निकाल के और नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल कर देंगे तो सारे को A नोट minus A AT आ जाएगा सो वी हैव एक्सप्रेशन K is equal to 1 upon T A नोट minus AT सो साडे कोल ए वाला एक्सप्रेशन आ गया इत्थे ए वाला आ गया और इत्थे ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਿਕਾਲਿਆ ਸੀਗਾ k is equal to x upon t सो दोनों ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ठीक है क्यों ਇੱਕੋ ਹੀ है k है इत्थे 1 upon t इत्थे है a है स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन ए है आफ्टर टाइम t कितनी रह गई a ਦੀ कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग ਵਿੱਚ मान लो 10 मोल ਸੀਗੇ बाद ਦੇ ਵਿੱਚ 6 रह गए ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 4 और इतने 10 माइनस 6 4 आ जाएगा और इतने असं पहले ही लै रहे हैं कि किन्ने रिएक्ट किए पहले 4 आ जाएगा सो दोनों एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम है तुसी चाहे इस तरीके नाल इसनु कंटिन्यू कर सकते हो या फिर इस तरीके नाल इसनु कंटिन्यू कर सकते हो ठीक है हुन अगर मैं इस इक्वेशन को देखा जिहड़ी कि ए वाली इक्वेशन है ए वाली लेट अस से दिस इक्वेशन नंबर 2 ਹੁਣ इक्वेशन नंबर 2 ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर मैं इस इक्वेशन देखना p वेरिएबल है क्योंकि डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन रिएक्ट करती हैं सो एक p वेरिएबल हो गया एक a वेरिएबल हो गया तो इसमें मैं y लिख सकती हूं इसमें मैं m x और a नोट स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन है a जिन्हें ऐसी पार्टी फिक्स ही रहेगी इन्हें मैं कांस्टेंट लिख सकते हैं सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और अगर इन्होंने मैच करिए असं ग्राफ प्लॉट कर लिए थे इतने टाइम है साडे कोल ठीक है और इस साइड से वाई एक्सिस से साडे कोल की होएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ता स्लोप एम इज स्लोप सी इज इंटरसेप्ट तो स्लोप की आ रही है माइनस के दे कोल आ रही है सो नेगेटिव स्लोप इस तरीके नाल और ए स्लोप इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू के तो असं स्लोप तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और जो इंटरसेप्ट है इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि व्हेन दिस पार्ट इज इक्वल टू 0 टाइम इज इक्वल टू 0 तो उस टाइम जो वैल्यू आती है इसको इंटरसेप्ट करनी है तो दिस इज इक्वल टू दिस इंटरसेप्ट इज इक्वल टू ए नोट तो ਅਸੀਂ ਵੀ फाइंड आउट कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में ਅਸੀਂ कितना कॉन्सेंट्रेशन ऐड की थी और ਅਸੀਂ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं और एक और चीज अगर असं स्टार्टिंग वाली इक्वेशन देखिए जो लिखा सी रेट इज इक्वल टू के ए रेज़ टू पावर 0 है ना जीरो ऑर्डर रिएक्शन का तो असं और ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं
इतने अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन लिखा और इतने रेट लिखा तो किस तरह का ग्राफ आएगा? For the zero order reaction, if we plot a graph between concentration and rate, what type of a graph it should be? Anyone? मैम स्ट्रेट लाइन। चलो तो ये दसो मैं स्ट्रेट लाइन, बट किस तरह की स्ट्रेट लाइन? मैम पैरेलल टू कंसंट्रेशन एक्सिस। Very good. So it must be a straight line parallel to concentration axis, or we can say zero axis. इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगी। इस रीजन की है कि ऐसे जितना मर्जी कंसंट्रेशन चेंज करी चलिए, क्योंकि है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। जो कंसंट्रेशन लेटर से 2 है तो रेट सपोज 10 आ रहा है, वैल्यू 10 है तो कंसंट्रेशन 4 करती तभी रेट 10 रहेगा, कंसंट्रेशन 6 करती तभी रेट 10 रहेगा, है ना। इस तरह से देखो it should be a straight line parallel to the x-axis or concentration axis। और a पैरेलल लाइन देखो a रेस पावर 0 है तो इसका मतलब रेट किस इक्वल आ रहा है? k दे इक्वल आ रहा है, तो a की वैल्यू आएगी that is equal to k also। so k की वैल्यू से इथों भी निकाल सकती है और इथों भी निकाल सकते हैं। so I think सारे में क्लियर होया होगा। और ने मैंने पूछा है फॉर्मूले ने कि नेगेटिव साइन क्यों लगाया है। ये मैं बेटा जो पिछला लेक्चर किया ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ कि अगर ਅਸੀਂ कोई रिएक्शन कर रहे हैं लेट अस से a + b गिविंग राइज टू c + d तो ਅਸੀਂ रेट ये भी लिख सकते हैं भी गिवन टाइम इंटरवल च a कितना डिक्रीज हो गया या b कितना डिक्रीज हो गया। ਅਸੀਂ रेट एक्सप्रेस कर सकते हैं कि कितने टाइम इंटरवल ਦੇ ਵਿੱਚ c कितना इंक्रीज हो गया या d कितना इंक्रीज हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट वधी जाएंगे विद टाइम और रिएक्टेंट घटी जाएंगे। तो अगर रिएक्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू ਨਾਲ लिखना है तो मैं इसको इस तरीके ਨਾਲ लिखूंगी नेगेटिव साइन लगा के, और अगर प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू ना लिखना है तो पॉजिटिव ही रहेगा तो कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं है। हम इसका रीजन की है नेगेटिव साइन क्यों लगाया है। सपोज स्टार्टिंग व्हेन टाइम t 10 मिनट सी लेट अस से कंसंट्रेशन a दी सी 12 मिनट्स, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल। और अगर टाइम 15 मिनट्स दी तो हो गया तो रिएक्टेंट के भी कंज्यूम हो रहा है, कंसंट्रेशन घट जाएगी, लेट अस से वो 8 मोल्स है उस टाइम, ठीक है। डिक्रीज होया कितना कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई, जो भी ਅਸੀਂ कंसंट्रेशन चेंज लेने से फाइनल माइनस इनिशियल लिख दें 8 - 12 = -4 और टाइम कितना चेंज हो गया 15 - 10 = 5, ठीक है। तो रेट क्या आएगा ਸਾਡੇ ਕੋਲ -4, जब आप नेगेटिव साइन नहीं लगाते तो dA हो गया -4, dt हो गया 5, तो ये नेगेटिव आ रहा है रेट। अगर रिएक्शन हो रहा है तो रेट नेगेटिव हो ही नहीं सकता, या तो रिएक्शन हो रहा है या रिएक्शन नहीं हो रहा। अगर रिएक्शन नहीं हो रहा तो रेट इज 0, अगर रिएक्शन हो रहा है तो रेट इज पॉजिटिव, बट इतने रेट क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। उसका रीजन की है कि 8 - 12 कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, फाइनल घट गई है तो अपने को साइन नेगेटिव आ गया, बट रेट क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होंगे तो असं की करेंगे इसके बाद एक नेगेटिव साइन लगा देंगे ताकि यह पॉजिटिव आ जाए। और ये प्रॉब्लम सिर्फ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਦੋਂ ਆਏਗੀ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। प्रोडक्ट के केस ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ टाइम ਦੇ ਨਾਲ प्रोडक्ट ਵਧੀ जाएगा। ਜੇ मैं सी ਦੀ ਗੱਲ कर रही ਹਾਂ स्टार्टिंग पहले मान लो 5 मोल्स बन के फिर लेटर से 8 मोल्स हो गए, है ना। जो जो टाइम पास हो रहा है तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो उस टाइम कॉन्सेंट्रेशन चेंज कितना होएगा 8 - 5 = 3 पॉजिटिव आएगा। टाइम कितना है 15 - 10 = 5, so 3/5 ऑलरेडी पॉजिटिव आ रहा है। सो जिधर भी ਅਸੀਂ प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू ਨਾਲ लिखते तो पॉजिटिव साइन, और अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू ਨਾਲ लिखते तो नेगेटिव साइन आता है। सो आई थिंक आई एम